Praise the Lord, church, and thank you so much for joining us this Sunday service. So we're just going to get straight into worship. So just before we do, we're going to do the Lord's Prayer. It should be coming up on your screen right about now. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen, amen. We have an awesome service in store for you guys today. So clap your hands and sing as we get into worship and give praise to our God. Praise the Lord, church. Welcome to Sunday Church. I hope you all had an amazing morning. Come on, let's just worship our Father this morning. Give him the ultimate praise and worship that he deserves. Amen? Amen. Because when Jesus says yes, no man can say no. Come on, let's worship him. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Hallelujah. Well, let's just worship him this morning. Heavenly Father, we just invite your Holy Spirit just to fill this place. Lord, fall fresh upon your people and let your Holy Spirit just take over. यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान आराधना 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 आराधना
so much that you are our way maker, that you're our promise keeper, and that no matter what happens to us, Lord, you're always going to protect us. Heavenly Father, you're welcome in this place right now. So we ask that you just take over this place and just let your holy anointing fill up this place. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Oh, be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, 'cause Jesus, you're center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh, at the center of it all. Let's sing it together. Jesus, be the center of my life. Oh, Jesus, be the center of my life. From beginning
declare the name of Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, God. We worship you. We lift your name on high. Thank you so much for this time that we have just to worship you in spirit and in truth, Lord. We thank you so much that you are our way maker, that you are our promise keeper, that you're the light in the darkness. And Lord, when it says in your word that we are rich, when it says in your word that we are more than conquerors through Christ, when it says in your word, Lord, that we are victorious, we take on that identity that no matter what's happening in the natural, Lord, we know that you're doing something in the supernatural, Lord, that you're shaking up in the supernatural, Lord, that you're making a way for your people, Lord. So I just ask, Father, that you just be with your people right now during this time of confusion, during this time of not really knowing what to do, Lord. I pray, God, that you'll just protect your people. But above all, Lord, you'll strengthen them. You'll give them the courage to continue just to proclaim the name of Jesus upon everything, upon every situation, upon every single circumstance. We proclaim the name of Jesus because things have to change when we declare the name of Jesus, because your name is above every other name, and everything in this earth has to bow down to the name of Jesus, Lord. We pray that you'll be with the rest of this service, Lord. Take over this place. Let your Holy Spirit go before us, guide us, and lead us, and make all of our crooked paths straight. Be with your servant as they come to give the word, Lord. Let it be a word in season. Let it fall on good ground, Father God, and let it take a lodging place in all of our hearts, Lord. We know that you're doing something amazing in all of our lives. And, you know, even though sometimes we can't feel it, even though sometimes we can't see, Lord, we know that you're moving, that you're meeting every single need, that you're changing minds, that you're touching hearts, that you're healing hearts, Lord. And we thank you so much that you will always remain faithful and you will always watch over your word to perform, Father God. We thank you so much for how much you love us, Lord. And we thank you that your grace is new for us every single morning, that your mercy is new for us every single morning, Lord. We praise you, God. We worship you, and we give you all the glory, honor, and praise because you deserve it, God. We love you, and we love you because you loved us first. We pray this all in your name. Amen. Amen, amen. To God be all the glory. As we move further in the service, won't you help me welcome our speaker of the hour? So come on, let's welcome him, Senior Pastor, Pastor George Running, as he comes to give the word. God bless you guys and have a blessed morning. Praise the good Lord. प्रभु की जय। हम आप सबको स्वागत करते हैं जहाँ से भी आप जुड़ते हैं हमारे साथ परमेश्वर के वचन के लिए। हम आपको स्वागत करते हैं। इस समय आज परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे और हम पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 4 और वर्स 35 से लेकर वर्स 40 तक। और धर्म शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, न्यू किंग जेम्स वर्जन। On the same day when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern asleep on a pillow, and they woke him up and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" Let's bow our head in prayer. Father, we say thank you for your word which is about to be preached to your beloved children, O Lord. I pray, God, that you will touch each one individually and collectively this morning. I pray, dear Jesus, and give you all the glory and honor. In Jesus' matchless name we pray and ask. Amen. धर्मशास्त्र कहता है कि शाम हो रहा था और
उस घड़ी प्रभु यीशु ने उन लोगों के बीच में कहा कि हमारे साथ आओ और हम झील के उस पार को जाएंगे। प्यारे दोस्तों, तुम जानते हैं जब भी कभी जिंदगी में इंसान के शाम आता है, जब जो कुछ है उसमें धुमिल सा दिखता है, और जब भी कभी शाम होता है तो जो हमारा दिखाई है, नज़र जिस प्रकार से हम देखते हैं वो कम हो जाता है। और इसी समय ये ढलती हुई जिंदगी में हमें अपना मंजिल नहीं दिखता, और इस दुख के बादल के समय जबकि आज पूरी संसार इस दुख और मुसीबत से गुजरता है, जो भी देश है, जो भी लोग हैं, घर है, घराने हैं, ये बहुत भारी परेशानी हर एक के जीवन में लाता है। और बहुत से लोग आज परेशान हैं, बहुत से माँ बाप दुखी हैं, बहुत से माँ बाप की ये सोच है कि उनके जो बच्चे हैं वो अब कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे, आगे के जो जिंदगी है वो पता नहीं है, क्योंकि बहुत से अनसर्टेनिटी है। इस दुख भरी जीवन में, इस दुख भरी संसार में आज जिस राह से हम गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ा बोझ हर एक इंसान के ऊपर है, हर एक मानव जाति के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ है। और धर्मशास्त्र कहता है कि प्रभु यीशु ने कहा कि हे बोझ से दबे और थकेमंद लोग मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज प्रभु यीशु यही कहता है हर एक सुनने वालों से कि जो भी बोझ तुम्हारे ऊपर है वो मुझे दे दो, मैं अपने कांधों पर तुम्हारे बोझ को लेता है और तुम्हें विश्राम दूंगा। और इसी प्रकार बाइबल कहता है कि परमेश्वर आज ये बात हम सभी से कह रहा है। और इस दुख और मुसीबत के बादल के बीच में बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से, हम झील के उस पार को चले। यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु एक प्रॉमिस देता है और एक इनविटेशन को देता है। वो कहता है अपने लोगों से, आइए मेरे साथ और हम मिलकर झील के उस पार को जाएंगे। यानी कि प्रभु यीशु जब भी एक बात कह देता है तो वो बदल नहीं सकता, और उसकी जो बात है वो कभी झूठा नहीं होता, क्योंकि अपने वचन में कहा नंबर्स 23 और 19 में, आई एम नॉट अ मैन दैट आई शुड लाई, nor the son of man that I should repent. So whatever Jesus says, it is yes and amen. So there is a promise in the journey. जो हमारा जिंदगी का सफर है, इस सफर में प्रभु यीशु अगर रहता है तो उसका एक वादा है, उसका ये प्रॉमिस है कि हम झील के उस पार जाएंगे। बाइबल कहता है कि उस मंजिल को हम पहुंचेंगे जो हमारे हृदय में, जो भी हमारा प्लान्स है, जो भी ड्रीम्स है, जो कुछ भी हमारे जीवन में है, बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु अगर आता है हमारे जीवन में हमारे साथ, तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे। बाइबल कहता है कि जिस घड़ी उन सब ने आया और बहुत धूमधाम से बैठा और हंसते खेलते और उस बोट के ऊपर अंदर बैठकर और उन लोग ने उस झील के ऊपर से जाना शुरू किया। वो झील जो है वो आज हमारा ज़िंदगी का सफ़र है। जो भी है आपका जीवन का ये सफ़र है, जिस सफ़र में आज तुम उतरे हो और चल रहे हो, हर सुबह हर शाम यही उम्मीद रखते हो कि हम झील के उस पार पहुंचेंगे, उस जीवन हम अपने मंजिल को पहुंचेंगे, उस मंजिल तक हम किसी भी तरह से पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। इस प्रॉमिस के बाद में जब वे लोग जाना शुरू किया और जा रहे थे, बाइबल कहता है कि अचानक से, सडनली, अचानक से एक अच्छी सी चलती गाड़ी, एक अच्छी सी चलती जीवन, जिस जीवन को तुम व्यतीत करते हो,
अचानक से एक तूफान की तरह आकर खड़ा होता है और उस समय इंसान को पता नहीं चलता कि हम क्या करें। बहुत बार ऐसे होता है दोस्तों, जो भी आप हैं, बहुत बार ये होता है जब तुम सोचते हो कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चलेगा और हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, और अचानक से एक समस्या तुम्हारे बीच में खड़ा होता है। इस बात को तुम्हें समझ में नहीं आता ये होता कैसे और क्यों हुआ। और बाइबल कहता है कि वर्स 37 में, and a great windstorm arose and the waves beat into the boat so that it was already filling। परमेश्वर के वचन कहता है कि जिस घड़ी अचानक से ये तूफान आया, उस घड़ी जिस जहाज में ये लोग जा रहे थे, उस जहाज में पानी अंदर आने लगा और जो चेले लोग थे वो बहुत घबरा गया, अंदर से बहुत घबरा गया, और वो सोचने लगा कि अब हम मर जाएंगे, अब हम डूब जाएंगे और हमें बचाने वाला कोई भी नहीं है। आज संसार जिस जगह से गुजर रहा है, यही बात को सोच रहा है कि आज जो हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, जो हम हर सुबह टीवी में और रेडियो में और अपने यार दोस्तों से जो भी कुछ सुनते हैं, ये ऐसा महसूस होता है कि आने वाला कल हम देखेंगे कि नहीं देख पाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं वो एक अच्छा भविष्य उनका होगा या नहीं होगा। हम जिस रास्ते से गुजरते हैं, क्या हम सफलता को पाएंगे या कामयाबी को पाएंगे, कि हम अपने जीवन में एक हार मान लेंगे। इसी प्रकार उस जहाज के अंदर जितने भी चेले थे प्रभु यीशु के साथ, वो लोग ने ये बात को सोचा कि हम अब शायद यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो डर, वो भय उनके अंदर में समा गया था। बाइबल कहता है Jesus said, Jeremiah 29:11, I know the thoughts that I think towards you, thoughts of peace and not of evil, says the Lord of hosts, to give you a future and a hope। परमेश्वर के वचन इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर रात और दिन अपने बेटे और बेटी के लिए अच्छा सोचता है। जहां भी आप हैं, मैं इस बात को आपको दोहराना चाहता हूं, बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है। चाहे तुम दुख में हो या सुख में, अमीर हो या गरीब हो, जो भी तुम हो, प्रभु यीशु तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता है। और आज मैं बताना चाहता हूं, इन लोगों ने जाकर और प्रभु यीशु को जब देखता है, वो आराम से सुता है, ऐसे कि उसके कोई फिक्र नहीं कि इतना बड़ा आंधी और तूफान और इस बोट को अब इधर से उधर ढमला रहा है और ये बोट डूबने पर है, लेकिन प्रभु यीशु का कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो प्यारे दोस्तों क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिस बात को वो कह दिया कि हम झील के उस पार पहुंचेंगे, तो हम झील के उस पार पहुंचेंगे। आज जब प्रभु यीशु के वचन तुम सुनते हो, जब प्रभु यीशु को तुम अपने जीवन में निमंत्रण देते हो, जब तुम प्रभु यीशु को अपने जीवन के जहाज में अंदर रखते हो, तो तुम्हें डरने की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, I have not given you the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind। 2 Timothy 1:7। परमेश्वर मानव जाति को भय की आत्मा नहीं दी है कि हम किसी चीज से डरे और डर के मारे हम लोग के ऊपर बहुत तकलीफ आता है। बाइबल कहता है कि ये जो भय की आत्मा है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से होता है। दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, ये जो भय की आत्मा, जो धमकी, जो डराओ, जो भी कुछ है, आप जब डरते हो, डर जाते हो, बाइबल कहता है कि ये डर के आत्मा जो है, बहुत से लोग को खत्म कर दिया है। उसके चेलों लोग ने आकर और प्रभु यीशु को जगाया
और परमेश्वर ने कहा कि वचन में कि वर्स 39 में, Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. दोस्तों, तुम जानते हो प्रभु यीशु के पास में सारा अधिकार दी गई। बाइबल कहता है कि मार्क 13:31 में कि heaven and earth shall pass away, और उसका जो वचन है, his word will never pass away. He said, all the authority in heaven and on earth is given unto me. सारा अधिकार नीचा के ऊपर, सारा अधिकार जो तूफान चलता है, जो हवा आते हैं, जो आग लगता है, जो भी कुछ होता है, सारा अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु के हाथ में दिया है। और उसी अधिकार से उसने खड़ा होकर और इस तूफान की ओर घुमा और उसकी ओर देखकर और उस तूफान को कहा कि थम जा, बी स्टिल। और बाइबल कहता है कि जैसा उसने कहा उसी प्रकार से वो हवा, वो तूफान, वो थम गई और शांत हो गया। और ये जो चेले लोग थे वो लोग इतना घबरा गए। वर्स 40 में कहता है, एंड ही सेड टू देम, व्हाई आर यू सो फियरफुल, हाउ इज इट दैट यू हैव नो फेथ। प्यारे दोस्तों, ये जो भय है, ये इनका विश्वास हटा दिया था। और बाइबल कहता है कोई भी मानव जाति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता बिना विश्वास के। अगर तुम्हारे पास में आज विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा तुम परमेश्वर को खुश कर सकते हो। No man can please God without faith. So how do we get faith? Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. परमेश्वर के वचन कहता है कि विश्वास इंसान के अंदर में कैसे आता है। हम जहां से सुनते हैं, हम कैसे अपने अंदर में विश्वास को लाए। बाइबल कहता है विश्वास सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। Bible also says faith is the substance of things hoped for, evidence of things not seen. So to make anything we need substance. To make your dreams come true, you need the substance. The Bible says substance comes through the word of God, because you will build the faith. Faith comes by hearing the word of God. And I want to tell you, मैं कहना चाहता हूं कि तुम अपने जो विश्वास है उसको आज प्रभु यीशु के वचन जब तुम सुनते हो और विश्वास को बढ़ाते हो, जब तुम्हारा विश्वास बढ़ता है, जो भी चीज के पीछे तुम भागते हो, जो भी अपने जीवन में जिस चीज को तुम प्राप्त करना चाहते हो, तुम हासिल कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो ताकत है। बाइबल कहता है आस्क एंड इट शैल बी गिवन, सीक यू विल फाइंड, नॉक द डोर्स विल बी ओपन फॉर यू। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है वो साफ साफ कहता है कि जो कुछ तुम मांगते हो परमेश्वर से वो तुम्हें देगा, क्योंकि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज जहां भी तुम है, जहां से जो कुछ भी मांगते हो, अपने भविष्य के लिए मांगते हो, अपने बच्चों के लिए मांगते हो, अपने जीवन में तरक्की के लिए मांगते हो, बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु से एक बार मांग कर देखो। प्रभु यीशु खड़ा है तुम्हारे हृदय के दरवाजे के पास और खटखटाता है कि जो कोई भी अपना दिल का दरवाजा जो है वो खोलता है और प्रभु यीशु को निमंत्रण देता, अपने अंदर लाता है, वो तुम्हारे साथ साथ रहता है। जिस जहाज में आज, जिस बोट में आज इस चेला लोग गुजर रहे थे, आज प्रभु यीशु कहता है कि वही जहाज आप है और मैं हूं। क्या हमारे अंदर जो है प्रभु यीशु आ सकता है? क्या प्रभु यीशु हमारे अंदर वास कर सकता है? क्योंकि सारा अधिकार ये पृथ्वी के ऊपर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है।
बाइबल कहता है एक्स 4:12 में कि धरती और आसमान के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम के द्वारा इंसान मुक्ति को पा सके, जिस नाम के द्वारा इंसान उद्धार को पा सके। एक ही नाम दिया गया और वो नाम है यीशु नाम। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु ने हम सब के लिए अपना प्राण दिया और प्रभु यीशु आज हर एक के हृदय में आकर वास करना चाहता है। प्रभु यीशु चाहता है कि आपके साथ में रहे और आपके साथ में खाए पिए और आपके जीवन में आए और आपका जीवन बदलता है। अगर आज आप निमंत्रण देते हो, अगर आज प्रभु यीशु को तुम निमंत्रण देते हो, यहां से आगे जब हम प्रार्थना करेंगे और आप चाहता है कि प्रभु यीशु तुम्हारे अंदर आए, आप चाहते हो कि प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन में रद्द बदल लाए, जिस जीवन में आज तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहां से आगे हमारा जीवन कैसा रहेगा, शायद हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, शायद ऐसा भी सोचता होगा, एक घबराहट सहित होगा आपके अंदर में। प्रभु यीशु कहता है कि पुकार मुझे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और ऐसी ऐसी गुड़ बातों को बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। प्यारे दोस्तों, ऐसे कई एक बात है जो हम अपने बारे में नहीं जानते, ऐसे कई एक बात है जो हम अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं, कई एक ऐसे बात है जिसमें हम एक अधूरा जीवन जीते हैं कि हम, हे परमेश्वर, हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें। प्रभु यीशु कहता है पुकार मुझे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्यारे दोस्तों, ये वो घड़ी है जबकि हम प्रभु यीशु को पुकारेंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाए, जैसे हम प्रार्थना में आपको लेकर चलते हैं। विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलेंगे और इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन के अंदर में प्रवेश करेगा। शायद तुम बैठकर सोचता होगा, जो भी सुनता है, कि मैं उस लायक नहीं हूं। प्रभु यीशु सिर्फ तुम्हारे हृदय को देखता है, वो तुम्हारे बाहर का रंग ढंग को नहीं देखता, तुम्हारा चाल चलन को नहीं देखता, तुम्हारे बातचीत को नहीं देखता, तुम किस घर और घराने से है वो नहीं देखता। प्रभु यीशु सिर्फ तुम्हारे हृदय को देखता है। वो नहीं देखता कि किस घराने से है, तुम ऊंचे घराने या तुम अमीर है या गरीब है, जो कुछ भी तुम है, प्रभु यीशु आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हृदय को देखता है। तो क्यों ना हमारे साथ आप प्रार्थना करें, आप साथ साथ में प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं पापी मनुष्य आज तुझे निमंत्रण देता हूं कि मेरे जीवन में तू आ, तू मेरे हृदय के अंदर आ और मेरे जीवन में वास कर और मेरे जीवन को सही रास्ता दिखा। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने मंजिल तक पहुंचा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen, amen. Thank you so much for that amazing word. There was just so much power and anointing. I can really just feel it right now in the atmosphere. Come on, right now as we just reflect on the words that we've just heard, let's just worship and praise our Father, because He really does deserve all the praise, honor and glory, because He's just that good. Amen. Come on, let's sing it together. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore.
धन्यवाद पास्टर जोड सुंदर सा वचन के लिए आज इस सुबह जो आपने लाए हैं. Our God is good all the time, and His word says in Hebrews 13:5 that He will never leave nor forsake us. धर्मशास्त्र कहता है इब्रानियों 13 और 5 में, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा. हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा. आज सुबह अगर आपके जीवन में किसी भी दुख या तकलीफ़ है या आप किसी भी अशांति से गुज़र रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर रहे, उसके चंगारा हाथ उसके ऊपर रहे और आपको वो सामर्थ्य दे और खुशहाली दे जीवन में. धर्मशास्त्र कहता है मत्ती 24 और 35 में कि आकाश पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बात नहीं टलेगा. So this morning, please join me as we say the declaration prayer. आज हम साथ declaration prayer को बोले और विश्वास करें कि जो भी आज हम बोलेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम करेगा. So as the prayer comes right about now on the screen, please join me to say the declaration prayer. 2020 is my year of new wine. I am living a surrendered life to God-given vision, wisdom and purpose. I am His vessel, a new wineskin to receive, conceive and give birth to the new He wants to do in and through me. He is enlarging my capacity to receive all that He has in store for me. Jesus, pour this new wine out of me that will draw souls from the four corners of this earth into your kingdom. Teach me to number my days that I may gain a heart of wisdom. Help me to live, love, and serve like you, Jesus, that it is no longer I who live, but Jesus lives in me. My body is your temple of the Holy Spirit. Not my will, but yours be done. Thank you, Lord, that you have crowned 2020 with your goodness, and your path for me is dripping with an overflow of your abundance. 2020 marks a new era, a new dimension propelling me to the fulfillment of my destiny. This is my year. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us this morning. If you have any prayer requests, please do contact us. You can message us on Messenger. You can contact us via email or phone, and we will pray for you. God bless you all. Have a blessed week.